वीडियो मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। जी आपका वीडियो ऑफ है। अ, So is the slide visible? यस सर। Okay. So we will have a very brief overview of low dropout voltage regulators, which is more often referred to as LDO or LDO regulators. So LDO stands for low dropout voltage regulator. So first of all, let's see the significance of this. So this slide shows a typical system on chip. You can see, uh, and the requirement of LDOs in a typical system on chip. So this is the battery. So you can consider this system on chip as a processor in your mobile phone. For example, the processor that goes in your mobile phone. So your mobile phone is operating with the battery. Then what happens that the different modules in a system on chip, for example, the RF power amplifier, the RF circuit operating at high DC voltage, analog circuits operating at high DC voltage, and then there are various circuits operating at low DC voltage, like the RF module, the digital circuits, phase locked loop circuits, and the processor, right? So these modules on a system on chip on an SoC, they have a single source of power supply, the battery. Although these modules they operate at different supply voltages. You can see that this is V1, V2, V3, V4. Similarly, here you can see it's a different voltage. So these modules they operate at different supply voltages, and they are designed to operate at different supply voltages so as to optimize the power dissipation and performance, because different modules they have different requirement, performance requirement, and therefore the supply voltage is adjusted to optimize the power dissipation for the desired performance. Now you can see that since all these different voltages they have to be derived from the same battery that goes in your mobile phone, so we need some power converters. So first of all, you can see we have DC to DC power converter, so that suppose if you have a 3.7 volt battery in your mobile phone, so a required DC voltage is obtained here, a required DC voltage is obtained here. Further, this same DC voltage is not suitable to be directly fed to RF module, to analog module, or this same DC voltage may not be suitable to be directly fed to RF module, digital module, PLL, and because, for example, for analog circuits, we need very accurate power supply free from any noise. So analog circuits, they have a different power supply requirement. On the other hand, digital circuits, they have altogether different requirement from the power supply, quality of the power supply. So you can see that on a single SoC, there goes multiple LDOs. For example, in this diagram, we have 6 LDOs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 low dropout voltage regulator circuits are there, and of course these LDOs they are not the same circuit repeated 6 times. Rather, they are different LDO circuits. Topology may be same; they may have the same circuit topology, but these LDOs they have been designed with different or for different specification, because you can see that the output voltage requirement of the circuit modules fed by these LDOs, they are different. For example, this LDO 3 feeds this RF circuit
LDO4 feeds digital circuit, LDO5 feeds PLL, LDO6 feeds processor. Here also LDO1 feeds the RF circuits operating with high DC voltage, and this LDO2 feeds this analog circuit operating at high DC voltage. So since these circuit modules, they have a different requirement, these LDO circuits, they are not the same LDO circuits repeated 6 times. Rather, we have 6 LDO circuits designed for 6 different specifications. So circuit topology may be same for all the 6 LDOs. Like when I say topology, so you know, for example, the 5 transistor op amp you design. So circuit topology is same, but you can design that op amp for a different specification, and you did it during the summer internship. Similarly, these LDOs, they may have the same circuit topology that we are going to discuss and learn today, but they have been designed with different specification. So I hope with this slide, now you are able to appreciate the utility of LDOs in a system on chip, right? Any query? Any query, any difficulty in understanding this diagram? Am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay, so let's go ahead. No queries. Now see this circuit diagram. This is this error amplifier is nothing but the operational amplifier. Okay, it could be a single stage op amp, it could be a two-stage op amp, or it could be a very complex multiple stage op amp that is being used as an error amplifier here. You can see that this inverting input of the error amplifier is connected to a reference voltage, and output of the error amplifier is connected to this P MOSFET, which is also referred to as pass transistor. And then we have these two resistors R1 and R2. They are simply acting as voltage divider. They are simply acting as voltage divider, and this node voltage is fed back to the non-inverting terminal of this error amplifier. So first of all, can you identify the feedback? Is it a positive feedback or a negative feedback? Let us name this voltage as V error, the output voltage, or it may not be appropriate to name it V error. Let me name it VG. So anybody, can you tell me, it's a feedback circuit that you all agree? There is a feedback in this circuit. Yes, sir. The output voltage feeds the gate of this transistor, and then this voltage is fed back to the non-inverting input of the operational amplifier or error amplifier. So do you identify, or can you identify whether it's a positive feedback or a negative feedback? Positive. Positive feedback, because what you are seeing, that the feedback is going to the non-inverting terminal, right? And that's why you are saying it a positive feedback. That's the reason. That's why you are saying positive feedback, Yes, sir. because the feedback is going to the positive input of the error amplifier. But if we see closely, the nature actually is negative feedback. Nature of this circuit is negative feedback. Why? You see, you have this error voltage. Okay. So what happens when V reg increases?
suppose this Vreg or regulated voltage increases. So what will happen to the error voltage? Error voltage will increase. Do you agree? Yes, sir. Error voltage means V plus minus V minus. It will increase. And therefore this Vg will increase. Tell me, do you agree or not? Yes, sir. It will increase. Now you see that what will happen to VGS or VSG of the transistor, I shall say VSG of the P MOSFET. VSG of the P MOSFET is equal to VDD minus VG. Do you agree? Yes, sir. So when, Decreases. yes, it will decrease. It will decrease ना. ये जो voltage है VSG. Now this will decrease. Now when VSG decreases means overdrive voltage is decreasing. So current will decrease. This current will decrease. Do you understand? Yes, sir. Now this decrease in current Yes, sir. will tend to decrease this voltage. This decrease in current, इस ब्रांच में अगर करंट डिक्रीज होगा तो ये वोल्टेज भी डिक्रीज होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. And therefore this V error will decrease, Vg will decrease, getting the point? Now see the effect. Although this node voltage you are feeding into the positive terminal or non-inverting terminal of the error amplifier, the effect is actually negative feedback. पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि कोई भी फीडबैक वोल्टेज जो है वो आउटपुट को फर्दर इंक्रीज करेगा, यही होगा ना. Yes, sir. यहां पे क्या हो रहा है कि अगर ये वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो इस फीडबैक, इस लूप के इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इट विल डिक्रीज. दिस लूप इफेक्ट विल टेंड टू डिक्रीज दिस वोल्टेज. Getting the point or not? Yes, sir. Yes, I got it. ठीक Yes, है. sir. So because we have a P MOSFET transistor connected here, therefore even when it looks like this feedback signal is going to the positive input of the error amplifier, it is actually in negative feedback configuration. Is that okay? It is in negative feedback configuration. So, is it clear? Are you convinced? Or if it is not clear, tell me. फीडबैक में क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक में कि कोई भी नॉइज सिग्नल जो होता है इट गेट्स एम्पलीफाइड एंड इट मेक्स द सर्किट अनस्टेबल. यही होता है ना. Yes, sir. यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी जो नॉइस, ये जो एरर वोल्टेज है यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी एरर जो है, सो वी एरर गोज एट द आउटपुट एंड इफ वी एरर इज इंक्रीजिंग, this voltage will increase and this will reduce the overdrive voltage of P MOSFET and therefore the current in this branch will decrease. This you understand now? Any increase in this error voltage will increase the output of the error amplifier. Okay? Yes, sir. होता है ना ये V out. क्या होता है V out जो होता है A CL into V error होता है, यही तो होता है ना. Closed loop gain of this error amplifier multiplied by error V plus minus V minus, यही होता है ना. अब इस Yes. output of this error amplifier is feeding the gate of this transistor P MOSFET PM1.
तो अगर इसका गेट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ओवरड्राइव वोल्टेज के बारे में क्या कह सकते हैं हम इस ट्रांजिस्टर के? ओवरड्राइव वोल्टेज जानते हैं ना आप लोग? ओवरड्राइव वोल्टेज given by VSG minus VTP is the overdrive voltage, and current ID is proportional to VSG minus mod VTP. यहाँ पे भी mod कर देते हैं, स्क्वायर होता है ना सैचुरेशन करंट, राइट? Yes, sir. हाँ, Yes, तो अब देखिए कोई ये नॉइज वोल्टेज, कोई भी एरर वोल्टेज यहाँ पे है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि इस ओवरड्राइव वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, yes, sir. and therefore the current will decrease. Do you agree? Overdrive voltage decreases, so current will decrease, the current flowing in this branch. Yes, Getting sir. the point or not? This current will decrease ना, जो current flow कर रहा है R1 R2 से, that current will decrease. Now a decrease in current through R1 R2 will decrease this voltage or not? बताएं, yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now you see any increase in error voltage actually results into a decrease in V regulated voltage, and a decrease in V regulated will ultimately do what? It will tend to decrease V error. तो जो एरर वोल्टेज है वो फीडबैक लूप की वजह से क्या होगा? This circuit will tend to decrease the error voltage, and this is the negative feedback effect. पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? वो बढ़ता ही जाता है, ऐसा ही होता है ना? नेगेटिव फीडबैक की इफेक्ट की वजह से यहां पे इसको ये whenever V error tends to increase, this feedback effect tries to decrease the V error. This you agree? Yes. Okay. Now this is the structure of the voltage regulator actually. So what happens, you see, in this voltage regulator circuit, you have this voltage regulator circuit, LDO circuit, and your load is connected here. Suppose this is feeding, this is the output voltage, right? That is feeding the circuit. जो previous slide में देखा था ना, LDO का output जो है वो different modules को feed कर रहा है. Now load in simulation or in design, the effect of load is captured by having a current source here that is referred to as I load. ठीक है? Now you can actually design this circuit for a desired value of V out. What you need to actually do, you need to size this transistor PM1 appropriately to get the desired I load and then a current flowing this branch. Okay, so if I say that this is I1, so the total current that you need from here is I1 plus I load, right? This reference voltage is a fixed quantity coming from band gap reference circuit. Okay, so this will be a constant reference voltage. So in this circuit, this node will always try to bring it closer to the reference voltage so that the error voltage is minimized here, or ideally zero. Okay? Getting the point or not? Yes, sir. Now what happens in a voltage regulator circuit? Suppose this, depending on the load, depending on the circuit operation, if this increases, suppose because of some activity, I load increases.
Okay, what will happen to V out? Increases. No, V out will decrease. The you see, it has got a fixed amount of current. This P MOSFET you have designed to supply this much current, I1 plus I load. Now, if I load has increased, so I1 has to decrease. To make the sum constant. Agree? Yes, sir. I load has increased, so I1 must decrease to make the sum constant. Tell me, do you follow it or not? Yes, sir. Now, in this Yes, circuit, if I1 decreases, so what will happen to V out? V out is what? Current flowing in this branch and this resistor R1, R2. यही तो है. इस ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ना. So basically you can say that the V out is equal to what? I1 into R1 plus R2. कह सकते हैं ना? Yes, sir. कह सकते हैं ना? Yes, sir. V out is R1 plus R2 into I1. Now if I1 is reducing, so V out will reduce. Now V out will reduce or I1 is reducing. So what will happen? This will reduce. Getting the point? Yes, sir. So what has happened? The current was this much and now the current increased. Say this. So this is I load, for example. So V out was some voltage V out. Now because of increase in the current, V out will go low. Okay. Now this, when V out goes low, this V reg will also go low, and the V error, what will happen to V error? Will it increase or decrease? Decrease. It will Decrease. decrease. So the voltage here at this node will also decrease. Output voltage क्या होगा इसका? Error voltage multiplied by the gain of this error amplifier. So if error voltage is decreasing, so this voltage will also decrease. Yes, sir. And when, Yes, when this voltage is decreasing, what will happen to the overdrive voltage? Increase. Decrease. Increase. VDD minus this voltage is the overdrive voltage. P MOSFET है ना? Do you agree? VSG minus mod VTP. VSG, this is source, this is gate. Now source voltage is fixed at VDD. If the gate voltage is decreasing, what will happen to VSG minus mod VTP? Increases. Increase. This will increase. So what will happen? This will increase the current supplied by this transistor. Increases. Current increase होगा ना? So जी. what will happen? This increase in current will again make this I1 restore the I1 to the previous value, as well as supply the increased value of load. So now the increased value of load current is being compensated by the increased current through the pass transistor, and I1 will get back to its original value. Do you understand that? Think over it. Initially क्या हुआ? When I load increased, this was biased at a certain value of overdrive voltage. So the current through P MOSFET was fixed. तो जो increase हुआ I load में वो कहां से compensate होगा? इस नोड पे देखिए इनकमिंग करंट जो है वो ड्रेन करंट है P MOSFET का. अब ड्रेन करंट P MOSFET का तो फिक्स्ड है. अगर इस ब्रांच में करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस ब्रांच में डिक्रीज होगा करंट, तभी तो टोटल करंट ड्रेन करंट के बराबर होगा. करंट कमिंग एंटरिंग द नोड एंड करंट लीविंग द नोड. नाउ करंट एंटरिंग द लोड इज द ड्रेन नोड इज द ड्रेन करंट ऑफ द MOSFET.
current leaving the node. So one current is going to the load, another current is going to these resistors R1, R2. So when current going to the load increases, so it will reduce the current going to these resistors so that the sum is same as the drain current of P MOSFET. But what happened? The decrease in the current going through R1, R2 actually decreased the output voltage. This decreased the regulated voltage, this decreased the error voltage, and this decreased the gate voltage. This is the feedback effect. इस लूप में ये इफेक्ट हुआ फीडबैक की वजह से. अब देखिए गेट वोल्टेज जब रिड्यूस हो रहा है तो ओवरड्राइव वोल्टेज जो है पी मॉसफेट का वो इंक्रीज हो गया. अब इसका ओवरड्राइव वोल्टेज चेंज हो गया ना. यहां से जब सिग्नल इसके थ्रू एरर एम्पलीफायर के थ्रू गेट पे आया तो अब इस पी मॉसफेट का ओवरड्राइव वोल्टेज हैज इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर द एक्स्ट्रा करंट विल नाउ बी so ID has actually increased now. Now the extra load current is being supplied through this drain current and I1 will be restored to its original value and therefore V out will go back to its original value. Do you understand this? Yes, sir. Similarly, what happens? Similar effect happens when I out or I load decreases. Let me take a different color. Similar thing happens when I load decreases. Now, initially, all the bias voltages, they are same. So, when I load decreases, what will happen to I1? Increases. I1 will increase. So, the V out will increase. This V reg will also increase. Getting the point or not? हाँ Yes, sir. बताइए. If I load decreases, so what will happen? You see, V out is actually Increased. I load, when I load decreases, V out will actually increase, and this will increase V regulated, this will increase error voltage, this will increase gate voltage. Now, when this gate voltage increases, what will happen to the overdrive voltage? Increase. Decrease. Decrease. So when it decreases, it will decrease the drain current of P MOSFET. Yes, sir. अब ड्रेन करंट जो पी मॉसफेट का डिक्रीज होगा तो क्या होगा? I1 will be restored to its original value and then decrease in drain voltage, drain current will compensate for the decrease in I load. Do you understand this? Yes, sir. Therefore, what will happen? This output voltage will again get back to its original value. So this is called the voltage regulator or voltage regulation. Means even for varying load, this LDO circuit will have a range of load current, and in that range of load current, it will provide a constant supply voltage. There will be transient variations, temporary variations on the output voltage node, but again, it will get back to the original value. This is the operation of an LDO, linear low dropout voltage regulator, right? So if we see the complete circuit, this is the basic architecture of LDO circuit that we have just seen. This C out is the external capacitor that is connected to improve the transient response of the LDO circuit. Otherwise, you can see rest of the things are same. You have error amplifier, you have this pass transistor, you have these voltage divider resistors RF1, RF2, you have this V reg feedback voltage, you have V out, and this I out actually represents the load connected to the LDO. Is that clear? Yes, sir. So when we have to design an LDO,
this voltage will be given to us. Okay, suppose this is 1.8 volt, and we may be asked to design an LDO circuit for that gives us that takes a supply voltage of 1.8 volt and gives you an output voltage of say 1.2 volt or 1.1 volt, whatever we will see the design that Manazir will demonstrate, right? So once you know this voltage, you know this voltage, and you know the DC voltage at the output of the error amplifier, what we do actually, we size the transistor for the desired current, and we choose appropriate value of resistors to get the voltage here, which is equal to V reference. So that is the design step. So Manazir, shall I stop and you shall start demonstration of design of LDO? Yes sir. What do you say? Huh? यस सर, अगर कोई क्वेरी हो थ्योरी से रिलेटेड तो पूछ लीजिए. हाँ, इनसे ये तो कोई पूछ नहीं रहा, मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू यस सर, मे बी. LDO, so they may not be able to follow it completely. But even if you have any query, please let me know. I will try to make you understand. कुछ क्रूड फॉर्म में कुछ तो समझ आएगा ना, तभी फिर आप डिजाइन का जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको फॉलो कर पाएंगे ना. एंड इट इज इंटरेस्टिंग दैट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिजाइन ऑफ एन LDO, it will be using the op amp that you designed, and you can see that once you have designed the op amp, so op amp is the main component here. Apart from op amp, you need only one PMOS transistor and two resistors to design an LDO. So जो मेन चैलेंज है एलडीओ डिजाइन करने का वो ऑप एम्प डिजाइन ही है. इफ यू हैव डिजाइन द ऑप एम्प, यू कैन गो अहेड एंड क्विकली डिजाइन एन एलडीओ. So are you ready to go ahead with the design of LDO? Nobody is responding. Yes, no. Sir. कुछ तो बोले आप. Yes, sir. Yes, sir, we are ready. So shall okay, so over to you, Manazir. ओके सर. I am stopping. I will stop sharing my screen. यस सर. So theory part has been completed and now we will proceed to design part. So design part is very easy because the main component is op amp as said by sir. So the main component is op amp that we already designed in our summer training. So I am using this op amp, and this op amp is designed by you people. I think I have taken the design from Google Classroom. Okay, so we will see the gain and the other parameter of this op amp. So I hope everyone has designed this op amp. This is a single stage op amp, and this is also known as OTA, operational transconductance amplifier, that I have already told you in one of the session, and I have taken one session for this also, OTA. So we can design this op amp by using multiple ways. You can design this op amp by using intuition method, by using GM by ID method, and there are also various method. So you can apply any method, and the final step is to design the op amp. So once the op amp is ready, so we can proceed to design LDO. So LDO is very crucial circuit, and uh, this is very important circuit because yeah, this circuit is designed usually in MTech. I heard people in MTech they do dissertation project in MTech. So yeah, you people are so lucky that you are familiar and you can design this op amp in your third year or second year BTech. So I'm sharing the PPT. So to design LDO we require some steps. So
Can you tell anyone what is the meaning of low dropout? अच्छा, I'm asking this question to Aisha Parveen. जी भाई. What is the meaning of low dropout in low dropout regulator? That means that we require a kind of a low drop, like if load current reduce, it should be kind of a stable output we get. नो, हिंदी में बताओ. लो ड्रॉप आउट, लो तो मतलब समझ में आता है कि लो मतलब समथिंग वेरी लेस. लो ड्रॉप Hmm. आउट इस एलडीओ के सिनेरियो में क्या ये क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा, पहले आंसर दे दो आप, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट भी है. तो आई थिंक आपको आने वाले टाइम में आप जहाँ भी इंटरव्यू Uh, दोगे तो ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है. तो आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा है प्लेसमेंट की व्यू से. लो ड्रॉप आउट मतलब अगर हम उसमें डिफरेंट लोड्स कनेक्ट करेंगे तो वो कांस्टेंट स्टेबल आउटपुट देना चाहिए, उसमें मतलब ड्रॉप कम होना चाहिए. ड्रॉप कम होना चाहिए. जो ड्रॉप हम्म. कम का मतलब ये है कि जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो सब्ट्रैक्शन है, यानी वी आउट माइनस हम्म. वी इन, वो लो होना चाहिए, है ना. जी. यहाँ ये क्वेश्चन मुझसे सिनॉप्सिस के 4th राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछा गया था बाय द डायरेक्टर ऑफ आवर टीम. सो यू अच्छा. कैन अप्रिशिएट दिस द क्वेश्चन, द रिलेवेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये एचआर सेशन में फाइनल राउंड में पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो ड्रॉप आउट इन एलडीओ. इसका आंसर ये था कि जो वी आउट लेते हैं और वी डी डी यानी वी इन, उसके बीच में जो सब्ट्रैक्शन होता है, यानी वी आउट माइनस वी इन या वी इन माइनस वी आउट, वो कम होता है. और यहाँ से आप देखोगे अगर इस सर्किट को, ये वी डी डी हमारा वी इन है और वी आउट है. ठीक है, तो इसका जो वी डी डी माइनस वी आउट है ये कितना होगा. अगर यहाँ पे लो तो वी डी डी 1.8 है, और अगर मैं इस सर्किट को डिज़ाइन कर रहा हूँ लेट से 1.5, तो 1.8 माइनस 1.5, 0.3 का डिफरेंस है ना. हम्म. तो और ये डिफरेंस नॉर्मली ये वीडीएस ऑफ दिस पीमोस होता है. और ये हम ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन पे डिज़ाइन करते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर सैचुरेशन होगा तो वीडीएस 0.2 के अराउंड होता है ना. नॉर्मली हम लोग थ्योरी में पढ़ते थे. या फिर वीडीएस बहुत कम होता है, अराउंड 60 मिली वोल्ट तक जाता है. यानी आप वी आउट माइनस वी इन जो है 60 मिली वोल्ट हो सकता है. तो 60 मिली वोल्ट इज़ वेरी लो वोल्टेज. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लो ड्रॉप आउट. ठीक है, तो ये बाकी लोग भी सुन लें कि लो ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि वी इन माइनस वी आउट जो है वो बहुत लो होगा क्वांटिटी में. तो लेट्स प्रोसीड इन आवर डिज़ाइन पार्ट. सो एज सेड बाय नो सर, भाई वी, हाँ बताओ. भाई ये पीमॉस जो है पास ट्रांजिस्टर, वो किस रीजन में, सैचुरेशन या फिर ट्रायोड? आपने बताया सैचुरेशन रीजन में. हम्म, क्योंकि जो फॉर्मूला लगाएंगे ना हम, तो वो जी. सैचुरेशन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे. और वो अच्छा. सैचुरेशन ही होना चाहिए क्योंकि Yes, कांस्टेंट P करंट होता MOSFET P MOSFET will be made to operate in saturation region. You will have to design the circuit such that the P MOSFET works in saturation region. At the extreme case means when the value of I load is to at the boundary, means जो range है आपका, then it may slightly come out of saturation region, but you will start your design assuming that MOSFET has to operate in saturation region. Okay, Zaf? जी सर. है. ठीक है, ऐसे सवाल पूछते रहना ताकि हमें भी समझ में आता है कि आप लोग समझते हो. तो एलडीओ डिज़ाइन करने के लिए जो पहला स्पेक्स है, तो नॉर्मली हम लोग ये दो स्पेक्स के लिए डिज़ाइन करेंगे. दूसरा ये कि वी आउट, और मतलब पहला वी आउट और दूसरा मैक्सिमम करंट. तो यहाँ पे जो है मैं वी आउट लेता हूँ इक्वल टू 1.5, यानी इनपुट तो वी डी डी है 1.8, और वी आउट इस सर्किट के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ 1.5 वोल्ट के लिए. ठीक है, यानी ये सर्किट जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेस एंड लाइन चेंजेस, लाइन वोल्टेज मीन्स वी डी डी चेंजेस, इट विल प्रोवाइड 1.8 वोल्टेज एवरी टाइम. ठीक है, और जो मैक्सिमम करंट है, लेट से मैं इसको 20 मिली एम्पियर के लिए डिज़ाइन करता हूँ. यानी आप लोड जो है वो 0 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो ये दो स्पेक्स है हमारा कि वी आउट शुड बी 1.5 एंड द मैक्सिमम करंट दैट दिस एलडीओ विल सपोर्ट इज 20 मिली एम्प्स. तो ये दोनों स्पेक्स हैं. अब इन स्पेक्स से हमें एमपी यानी विथ ऑफ द पास ट्रांजिस्टर, जिसका एमपी यहाँ पे नाम है, उसका विथ फाइंड आउट करना पड़ेगा.
और दूसरा R1 R2। तो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो ये है, पहले क्या है, ऑप एम्प ऑलरेडी डिजाइंड। मैं इसको द ऑप एम्प ऑलरेडी डिजाइन सब किसी के पास सिंगल स्टेज ऑप एम्प है अभी, क्योंकि सभी ने जो है गूगल क्लासरूम में सबमिट किया था। और दूसरा क्या, वीरेफ। तो फिलहाल हम वीरेफ जो सर बताया कि वीजीआर सर्किट से आता है, लेकिन हम वीजीआर सर्किट को डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम सिंपली वीरेफ जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और वो कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, जो हमारा ऑप एम्प में वीसीएम था। वीसीएम याद है किसी को, क्या था, कोई बताइए। कॉमन मोड वोल्टेज। हाँ, कॉमन मोड वोल्टेज। कॉमन मोड वोल्टेज। हाँ, जो 1.1 या अराउंड 1 के आसपास आता, 1.2 इस तरह से, जो डीसी वोल्टेज था अराउंड इनपुट। तो हमारे पास ऑप एम्प भी है, वीरेफ भी है, और तीसरा है कि इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज क्या हमारे पास यहाँ पे वीडीडी है। वीडीडी हम लोग जानते हैं कि 180 नैनोमीटर के लिए 1.8 है। तो हमारे पास ये 3 पैरामीटर ऑलरेडी नोन है, हमें ये 2 पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं, R1 R2। तो R1 R2 का वैल्यू जो होगा वो पोटेंशियल डिवाइडर यानी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं इक्वेशन बताऊंगा। और दूसरा क्या, विथ ऑफ पीमोस। तो विथ ऑफ पीमोस का जो है आप सिंपल, आपके पास यहाँ पे VGS आपको वेल नोन है, मैं बताऊंगा VGS कितना है अभी। तो वहाँ से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सैचुरेशन वाला, ID इक्वल टू हाफ म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर इग्नोरिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। और दूसरा क्या कि हम लोग ADT टूल बॉक्स यूज़ किए हैं GM/ID मेथड। तो मैं आज जो है GM/ID मेथड से इस W को फाइंड आउट करेंगे। वो बहुत आसान है, मेरे को फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग विथ ऑफ द पीमोस फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जब सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे तो ये रिज़ल्ट प्लॉट करना होगा। तो फिलहाल हम डिज़ाइन पे जाते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ इस सर्किट पे अगर गौर करो तो वी आउट 1.5 है, ठीक है। और हमें जो है यहाँ पे वीरेफ हमारा इस सर्किट पे 1 है। तो हमें यहाँ पे, अच्छा इसका मैं नाम देता हूँ, तो वी रेज जो वोल्टेज है वो कितना है, वो भी 1 ही है, ठीक है। देखो वीरेफ 1 है, ऑलरेडी हमने यहाँ प्रोवाइड किया। तो हमें यहाँ पे भी क्या है कि वी रेज भी हमें 1 वैल्यू लेके आना, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो इस केस में एरर क्या होगा, 0। तो हम इनिशियल कंडीशन में लेते हैं कि एरर 0 हो। अब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हमें वोल्टेज चाहिए, है ना। स्क्रीन विजिबल है ना सबको, जी भाई। हाँ। अब यहाँ पे इसको 1.51 को फिलहाल हटा दो, यहाँ पे हमें 1.5 एज्यूम करना है। अब यहाँ से आप पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला अप्लाई करो और R1 R2 का इक्वेशन आएगा आपको। कैसे आएगा देखो, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1। ये बात सबको समझ में आया। अगर इस इक्वेशन को आप लिखोगे, आई थिंक पोटेंशियल डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला तो सभी को आता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या होगा, R1 प्लस R2 इंटू क्या होगा, टोटल वोल्टेज 1.5, सॉरी 1.5 इज इक्वल टू 1। यही है ना, यही क्वेश्चन है। कि R1 R2 क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू जो टोटल वोल्टेज होता है 1.5 इज इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ से इसको R1 और R2 का इक्वेशन निकालोगे तो कोई मुझे बताया कि ये इसका एग्जैक्ट इक्वेशन बताओ, इसको डिवाइड सॉल्यूशन करके। R1 R1 equals to 2R2. R1
R1 इक्वल टू 2R2. 2R2। बाकी लोग भी, तो फिलहाल मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं है, आप लोग देख लेना। तो इस तरह से आपका जो है इक्वेशन आएगा। अब वहाँ से क्या करना है आपको कि R1 या R2 को एज्यूम कर लेना। यहाँ पे ये कह सकते हैं मनाजिर, जी सर। हाँ, कि वी आउट पता है हमें, तो वो जो ब्रांच है R1 R2, उसमें हम कितना करंट अफोर्ड कर सकते हैं पावर डिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम लोग 20 माइक्रो एम्पियर या 30 माइक्रो एम्पियर ऐसे ले सकते हैं, जी रादर देन एज्यूमिंग। तो R1 + R2 की वैल्यू वहां से आ जाएगी। हाँ सर, ऐसे भी आ जाएगा, मतलब मैंने डिज़ाइन किया था ऐसे ही, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा, सिंपल लगा। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, मैं ये बताने वाला था लोगों के इस तरह से भी करते हैं। तो फिलहाल अगर यहाँ पे R1 या R2 एज्यूम कर लेंगे, तो फॉर एग्जांपल R2 आप एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे R1 का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा, R1 R2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अभी किसी ने बोला कि R1 इक्वल टू 2R2, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट किया था, तो ये ऑलमोस्ट डबल ही है, ठीक है। R1 R2 क्या है, R1 इक्वल R2 इक्वल टू 2R1 है। आई थिंक R2 इक्वल टू 2R1 होगा। ये मैंने डिज़ाइन किया था घर पे, तो मेरे पास इक्वेशन नहीं है, लेकिन इस तरह से ही होगा, ठीक है। और ये डबल रेशियो भी है 10 के और 20 के। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, R1 और R2 का वैल्यू पोटेंशियल डिवाइडर से फाइंड आउट कर सकते हो। अब दूसरा क्या है कि हमारे पास पीमोस का विड्थ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऑप एम्प का आउटपुट देखना पड़ेगा कितना है, ठीक है। तो ये ऑप एम्प सर्किट है, और ये ऑप एम्प सिंबल सभी ने बनाया होगा, और मैंने इसको अलग से तो ये ऑप एम्प 45 जो है, ये मैंने इसका ओपम 45 नाम है, यानी 45 इसका गेन है। ओपम 45.asc इसका नाम है, ठीक है। तो इसी सर्किट को मैंने यहाँ पे इंस्टेंशिएट करके इसको वोल्टेज लगाया था, तो ये VCM है। तो VCM 1 हमने दिया था। अब यहाँ से देखोगे इसका वी आउट DC कितना है, तो ये .op रन कमांड रन करोगे आप, तो यहाँ देखोगे कि इसका वी आउट, यहाँ पे कर्सर रखोगे तो क्या 1.02 है, ठीक है। तो वी आउट 1.2 है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 1.02 वोल्टेज ऑलरेडी आया हुआ, 1.02। अब यहाँ से क्या आपको VGS निकाला, यानी VSG, आपको यहाँ से VSG फाइंड आउट करना है। तो VSG कोई बताएगा कितना होगा, VS माइनस VG। तो VS तो 1.8 है, और VG कितना है 1.02। कितना होगा 0.78। 0.78. 0.78, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पास VGS 0.78 है। अब इस VGS को नोट करके हम ADT टूल बॉक्स ओपन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये यहाँ पे PMOS सेलेक्ट करेंगे, PCH, और GM/ID एक्स एक्सिस पे, और Y एक्सिस पे VGS, क्योंकि हमें VGS पता है फिलहाल। और लेंथ हम लोग 360 नैनोमीटर रखेंगे। और VDS कितना होगा, VDS होगा VD माइनस S, तो ये 0.3 होगा, क्योंकि VD, हाँ, ड्रेन माइनस सोर्स 1.5 माइनस 1.8, ठीक है, 0.3 होगा, यानी VSG इस केस में है। तो आप उसको VDS या VSG सेम एज्यूम कर सकते हैं, हालांकि इससे बहुत माइनर चेंज भैया, होता है। हाँ, वो जो R1 आ रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ R2 ही आ रहा है। 2 टाइम्स ऑफ R2। जी हाँ, जी भाई। जी भाई. अच्छा ये जो इक्वेशन लिखी है वोल्टेज डिवीजन की, इसमें R2 ऊपर आएगा, अच्छा, हाँ R2/R. R2 पर हाँ वही ठीक है। तो अब ये सही इस तरह से आएगा, अब करेक्ट है ना, यानी वोल्टेज जी भाई।
पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट हम सब भूल चुके हैं, सबसे पहले मैं ही भूला था, सॉरी फॉर दिस। तो अब R2 इज इक्वल टू R1, ठीक है। तो R1 यहाँ पे 10 है, तो और ये 20 होगा, इसको 20 भी कर सकते हो, मैंने शायद उसको थोड़ा सा इटरेशन करके। तो R1 R2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम कहाँ पे थे, यानी ऑप एम्प का जो आउटपुट वोल्टेज था 1.2 था, उस उससे हम VGS निकालेंगे। VGS मीन्स VSG। तो यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, VGS जो पता है हमें 7.8 इस तरह से, यानी 0.78 एंटर करके या मतलब टाइप करके एंटर करोगे तो इसका GM/ID आएगा। अब हमें ये GM/ID पता चल गया, तो इसका GM/ID कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका VGS के करस्पॉन्डिंग हमने 0.78 वोल्ट, इसका GM/ID जो है 5.35 है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक पैरामीटर और निकालना है, ID/W। ID/W किस लिए, क्योंकि W फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पे ID हमारे पास, ID हमें पता है कि ID हम एज्यूम करे थे कितना, 20 मिली एम्पेयर। यानी अगर आपके पास सिर्फ ID/W का रेशियो आ जाएगा तो W फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, जब आपके पास, अब हम हमारे पास क्या है, GM/ID ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्लॉट करेंगे। पहले फिर पहले क्या है कि PCH मतलब PMOS सेलेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे GM/ID, वाई एक्सिस पे ID/W, लेंथ 360 रख रहे हैं फिलहाल, VDS 0.3 और प्लॉट करेंगे। अब क्या करो आप कि GM/ID कितना है, 5.354, इसके करस्पॉन्डिंग में आपको ID/W का वैल्यू आ जाएगा। तो ID/W क्या है, 9.867 है। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि W जो हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करते थे, किसी को याद है? W is equal to RD upon ID upon W. हाँ, ID/W अपॉन ID बाई, सॉरी, ID, ID by ID upon ID by ID upon W. W. हाँ ID/W, ठीक है। हाँ ये आ गया। अब यहाँ पे क्या, ID 20 मिली एम्प्स और ID/W 9.87, इसको डिवाइड करके बताओ कि W का वैल्यू कितना आ रहा है। ये W का मीन्स WP, डिवाइड करो कैलकुलेटर से। 2.02 मिली। 2.02 मिली मीटर, यही ना। हम्म। हाँ, तो अब इस केस यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर था वो सारा फाइंड आउट हो चुका है। R1 R2 का वैल्यू आ गया और विथ ऑफ द PMOS। तो अब क्या है कि हम इस पर अप्लाई करेंगे 0.20, फिलहाल यहाँ पे कितना 1.7, ठीक है, 0.20 मिली मीटर। मीटर ऑलरेडी ऐसा यूनिट है तो हमें मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ। तो अब यहाँ पे सारा पैरामीटर फाइंड आउट हो चुके हैं। VREF हम लोग VCM से निकाल लिए थे, और R1 R2 का वैल्यू पोटेंशियल डिवाइडर से, और MP का वैल्यू कहाँ से निकाले, VGS हमें पता था, और VGS से इसके बाद हम लोग ADT टूल बॉक्स से VGS से हम लोग सबसे पहले इसका GM/ID फाइंड आउट करें, फिर उस GM/ID से हम लोग ID/W फाइंड आउट करें। और क्योंकि हम हमारा डिज़ाइन कर रहे हैं हम 20 मिली एम्पेयर के लिए मैक्सिमम करंट, तो ID पता है, तो वहाँ से हमें क्या है, विथ ऑफ द PMOS आ चुका। तो यहाँ पे क्या है कि सारा पैरामीटर हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें सर्किट को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टेक्नोलॉजी नोड इंक्लूड करना पड़ेगा, जो डॉट इंक्लूड CMOS 180 TXT। ये इस ट्रांजिस्टर के लिए भी है और इस ऑप एम्प के लिए भी है, दोनों सेम मॉडल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और डॉट OP सबसे पहले क्या करते हैं, डॉट OP कमांड रन करते हैं। अच्छा, रन करने से पहले ये बताइए कि यहाँ तक सबको समझ में आया
किसी को R1 R2 और W का वैल्यू फाइंड आउट मतलब समझ में नहीं आया कैसे निकालते हैं? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि डिज़ाइन पार्ट हो चुका है। आगे बढ़ो। कोई पूछ सकते हैं, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो अब ये जो लोड है, हम लोग लोड एक्सटर्नल अप्लाई किए हैं, जो सर भी बताए थे। ये लोड एक्सटर्नल है, इसको डिज़ाइन पार्ट पे नहीं जो एज्यूम करेंगे। उसके बाद एक कैपेसिटर हमें, ये भी एक्सटर्नल है, ये प्लेस करना पड़ेगा। फिलहाल आप नहीं भी कर सकते थे, लेकिन अगर करेंगे तो उसे वो थोड़ा सा स्पाइस कम आता है। तो इसका जो वैल्यू है वो 10 पिको मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ये 10 पिको मतलब हाई वैल्यू है, और ये मेरे मेंटर हैं इंटेल जी जावेद सर, वो बताए थे कि अराउंड 10 पिको फैराड रखोगे तो वो सर्किट का बिहेवियर सही रहता है। तो आप खुद से भी सर्किट डिज़ाइन करो तो 10 पिको फैराड अप्लाई कर सकते हो। तो ये कैपेसिटर हमने, और ये लोड क्या है, एक्सटर्नल है। बाकी MP R1 R2 डिज़ाइन पैरामीटर है, और ऑपएम ऑलरेडी हम लोग डिज़ाइन कर चुके हैं। तो अब ये डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट हो चुका। हम लोग मतलब एनालिसिस पार्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, डॉट ओपी कमांड रन होगा, क्योंकि सारे कमेंट हैं। तो इसको अगर रन करोगे आप, अब देखो कि वी आउट कितना आ रहा है। हमने एज्यूम करा था 1.5, तो यहाँ पे देखोगे 1.4997797 इस तरह से आ रहा। तो वो अराउंड ये 1.5 ही है। तो इसका जो ये एज्यूम वैल्यू था, और जो वी आउट रियल है वो कितना आ रहा, 1.4997 इस तरह से आ रहा वोल्ट। तो ये 1.5 ही है। तो पहला जो टास्क था हमारा कि वी आउट 1.5 होगा, वो हमने मतलब अचीव कर चुके हैं हम लोगों ने। तो यहाँ से क्या हुआ कि अब आपका LDO डिज़ाइन हो चुका है फाइनल, यानी यू हैव सक्सेसफुली डिज़ाइन LDO बाय जस्ट फाइंड आउट 3 पैरामीटर्स। अब हमें क्या करना है कि जो अब इसके 4 एनालिसिस होते हैं, 5 होगा वैसे OP लगा के। OPM से क्या कर सकते हैं आप, बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं आप कि वी आउट हमने ऑलरेडी चेक किया 1.5 सही आ रहा है। अगर ये नहीं आता तो फिर हमें क्या होता, डिज़ाइन पार्ट पे चेंज करना पड़ता। और यहाँ पे देख सकते हो कि इधर इस करंट या मतलब रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ये बहुत कम करंट फ्लो होगा। फिलहाल मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसको। हाँ देखो, द करंट थ्रो R1 R2 सेम ही होगा, तो वो 49.9 यानी 50 माइक्रो एम्पेयर्स है। तो ये करंट बहुत कम है। तो जो सर कह रहे थे कि हम करंट एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप करंट एज्यूम करके उसके वहाँ से भी मतलब फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते थे वैल्यूज़। यानी आप एज्यूम कर लो कि इस आई मतलब R1 के थ्रू जो है 50 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो होगा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम डिज़ाइन किया था LDO, तो मैंने 18 माइक्रो एम्प्स एज्यूम किया था। तो 18, 30, 50 माइक्रो एम्प्स आप एज्यूम करके, तो वहाँ से भी क्या होगा कि क्या KCL KVL लगा के मतलब V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूले से भी आप यानी ओम्स लॉ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन से। तो दोनों तरह से कर सकते हो आप, R1 R2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मुझे ये आसान लगा कि जस्ट सिंपल पुटिंग पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ R1 R2 बाय जस्ट एज्यूमिंग वन R, एंड वी विल गेट द सेकेंड R अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग इसका डिज़ाइन पार्ट हो चुका, अब रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो रिजल्ट जनरेट करना ही बहुत मतलब TDS टास्क है। जितना आसानी से आप डिज़ाइन करें उससे ज़्यादा आपको मेहनत लगेगा मतलब रिज़ल्ट प्लॉट करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये प्लॉट करेंगे DC लाइन रेगुलेशन। तो लाइन का मतलब क्या होता है कि इनपुट वोल्टेज चेंज करते हैं। आप ये दो चीज़ याद रखना, लाइन और लोड। लाइन का मतलब इनपुट वोल्टेज चेंज करेंगे, और लोड का मतलब आउटपुट करंट चेंज करेंगे।
तो ये चीज़ अगर आप कन्फ्यूज़न ना हो, तो डीसी लाइन रेगुलेशन, तो क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज चेंज करेंगे। तो इनपुट वोल्टेज क्या हमारे पास वीडीडी है, ठीक है, क्योंकि हमने ये मतलब ये सर्किट है वीडीडी, ये वी आउट, तो ये इनपुट है वीडीडी, ये आउटपुट है। तो इनपुट चेंज करेंगे ना, वीडीडी चेंज करेंगे। तो वीडीडी कहाँ पे है, वीडीडी ये सोर्स है, ठीक है 1.8। तो क्या करेंगे हम 1.8 को स्वीप करेंगे, कहाँ से, आप 0 से 1.8 तक या 2 तक स्वीप करो, फिर देखो कि आउटपुट क्या आता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इनपुट चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट किस तरह से चेंज हो रहा है। आइडियली होना ये चाहिए कि अगर ये सर्किट ऑन हो, जब एलडीओ जब ऑन हो, तो उसके बाद ऑन होने के बाद अगर हम वीडीडी चेंज करें, यानी लेट से 1.5 से 1.6 करें या 1.4 ले आए, तो आउटपुट कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये 1.5 का मतलब ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ वीडीडी चेंजेस, वी विल गेट कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.5, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एलडीओ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ओपी कमांड रन करके इसका वी आउट चेक कर लिया, एंड आप बाकी चीज़ें भी करंट थ्रो, दिस ऑप एम, पावर डिसिपेशन सारा आप निकाल सकते हो कि पावर डिसिपेशन कितना, 36 मिली वाट, क्योंकि करंट ही 20 मिली वाट है और वोल्टेज 1.5 है, तो 20 इंटू 1.5 करोगे तो 36 के आसपास आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि डीसी लाइन रेगुलेशन यानी वीडीडी को चेंज करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो कि एक कमांड है डॉट डीसी, ये कमांड सभी को पता है, डॉट डीसी टू स्वीप डीसी सोर्स, देन दिस सिंटैक्स द नेम ऑफ द सोर्स। तो सोर्स का नाम वीडीडी है और नेट नेम भी वीडीडी है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों को सेम कर दिया हूँ, तो वीडीडी है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग वैल्यू है 1.3। आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट कर, देखो मैं पहले बताता हूँ कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो टू सॉरी जीरो से लेकर ये फाइनल यानी 2 वोल्ट तक, यानी 0 to 2 वोल्ट विद द स्टेप ऑफ 0.1। ये सिंटैक्स है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसको आप रन करो तो क्या होगा कि ये अगर अब क्या करें, हमें वी आउट प्लॉट करना पड़ेगा। तो वी आउट प्लॉट आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे तो वी आउट प्लॉट होगा, ठीक है। तो देखो अब जब हम लोग यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है, जो कांस्टेंट वोल्टेज है वो तो सही है, 1.48 के अराउंड है, लेकिन आप देखोगे इधर कि यह -500 वोल्ट तक जा रहा है। तो -500 वोल्ट का मतलब पता है क्या है? पूरा आग लग जाएगा इसमें, तो उतना दूर तो ले आना नहीं। तो हम लोग क्या, इसलिए क्या किया था मैंने कि स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पे आपको मतलब ये मतलब ये ग्राफ को क्या करें, हम लिमिट कर रहे हैं कि हम 0 से स्टार्ट ना करके 1.3 से स्टार्ट करते हैं, यानी इनिशियल वैल्यू जो 1.3 होगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं 1.3, देन इसको रन करेंगे, देन प्लॉट वी आउट। तो अब देखो कि ये सही लग रहा है, ठीक है, 1.2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे इस रीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी ये जो रीजन है ये रीजन कर्सर 1 कर्सर 2 के रीजन में, अगर ये टेक्स्ट होगा कुछ, तो यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा ये जो एरो है, इस रीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस रीजन से मतलब है। ये जो कांस्टेंट रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम फोकस क्या करेंगे, इसी पे करेंगे। हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा ये कांस्टेंट वोल्टेज है, ठीक है। अब देखोगे स्लाइटली वेरिएशन हो रहा है, तो अगर मैं सबको हटा दूं और इसको एक, तो यहाँ से सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक क्या कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो आप, ये रीजन यानी ये सेकेंड एरो। तो मैं इस एरो को डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। यानी ये जो एरो है, ये एरो हमारे पास ये कांस्टेंट वोल्टेज है। अगर आप ज़्यादा गौर करोगे तो देखो यहाँ पे कितना, अब यहाँ पे कर्सर है 1.499 है हॉरिजेंटल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ले आओगे थोड़ा सा नीचे तो 1.493 है। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, ये बहुत माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट में फ़र्क होगा।
तो आप जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा जहाँ तक एरो एंड हो रहा इसको आप कांस्टेंट एज्यूम कर सकते, मतलब कांस्टेंट ही है विद स्लाइड चेंज ऑफ माइक्रोवोल्ट और 1-2 मिली वोल्ट। तो ये था डीसी। यहाँ पे एक ग्राफ और प्लॉट करता हूँ मैं 8 प्लेन। यहाँ पे मैं वीडीडी को प्लॉट करता हूँ। तो ये है, ये क्या है, डीसी लाइन रेगुलेशन ऑफ एलडीओ। डीसी लाइन का मतलब है कि वीडीडी को यानी इनपुट वोल्टेज को आप स्वीप कर रहे हो, कहाँ से 1.3 से कर रहे हैं फिलहाल, 1.3 से 2 तक। तो आप देख सकते हो आप कि जब वीडीडी 1.9 वोल्ट है तब भी जो है वी आउट 1.5 है। अगर वीडीडी आप 1.7 ले आ रहे हो तब भी क्या है, वी आउट 1.5 है। अगर वीडीडी आप 1.6 ले आ रहे हो तब भी उस केस में वी आउट क्या है, कांस्टेंट है 1.5। तो कहने का मतलब यहाँ ये है पे मनाजिर, मनाजिर जी सर। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये VDD जो आप देख रहे हैं विच इज डिक्रीजिंग फ्रॉम से 1.8 वोल्ट, सो यू कैन थिंक इट लाइक when your battery is fully charged, the mobile phone battery is fully charged, and when you start using your mobile phone, so what happens, battery starts to drain, right? But even when battery starts to drain up to this point, say at one point when the battery has drained from say 1.8 volt to 1.65 volt or something like that, the voltage that is being available for the circuit modules remains fixed at 1.5 volt. So, and therefore the performance is same. Do you understand that? Because Yes. the output voltage available from the battery is not constant now. As soon as you start using your mobile phone, the battery starts to drain, and therefore the voltage available from the battery will go on decreasing. But you can see that the supply voltage available to the circuits, that remain constant. Do you understand that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Manazir, go ahead. हाँ, तो मैं भी एक ऐड कर दूँ कि जैसे यहाँ पे आप, मैं रोक लेता हूँ टेक्स्ट। जैसे आपका एग्जांपल बैटरी 2 वोल्ट है, ठीक है, इस 2 वोल्ट को आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल यहाँ है 2 वोल्ट। तो अगर ये आपका बैटरी जो है 1.5 तक आ जाएगा, यानी आपका बैटरी डिस्चार्ज होके 1.5 वोल्ट यहाँ पे आएगा, तब भी क्या है 1.5 से लेकर 2 तक, यानी 2, आप रिवर्स जाओ, 2 वोल्ट पहले से था, डिस्चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, 1.8 आया, फिर 1.7 आया। तो 1.7 आएगा इनपुट पे बैटरी, 1.6 आएगा, 1.5 आएगा। तो ये हमारा बैटरी चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट क्या कांस्टेंट है, और हमें यही चाहिए था कि स्लाइड। अब मान लो आपका इस तरह से भी कर सकते हो कि 1.8 का वोल्ट का बैटरी है, वो डिस्चार्ज होके 1.6 आ गया, बैटरी तो डिस्चार्ज हुआ लेकिन आपको जो है आउटपुट कांस्टेंट मिलेगा। तो यही काम है रेगुलेटर का। जेनर डायोड से भी हम लोग रेगुलेटर बनाते हैं, तो इनपुट पे थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज होता है लेकिन आउटपुट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये रेगुलेटर का मेन वर्क है। लो ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि इसका वी आउट माइनस वी इन बहुत कम है। तो ये हम लोग डीसी लाइन रेगुलेशन प्लॉट करे थे, और ये आपको प्लॉट करना है, यानी आप कहीं पे भी फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट करोगे या कहीं रिसर्च पेपर पब्लिश लिखोगे तो उस पर आपको ये प्लॉट चाहिए कि वी डी डी आप चेंज कर रहे हो लेकिन वी आउट कॉन्स्टेंट है। तो दिस इज ए कंप्लीट वर्किंग एज ए लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर। उसके बाद दूसरा एनालिसिस क्या है? भाई हम्म अगर हम वीडीडी बहुत कम कर दे रहे हैं, लाइक 0.2 वोल्ट, तो वो 100 वोल्ट्स में आउटपुट क्यों जा रहा था? क्योंकि देखो 1.5 से अगर ये कम होगा ना, तो अगर वी डी डी 1.5 रख रहे हो और वी आउट भी 1.5 है तो वी डी एस कितना हो जाएगा? VDS 0। जीरो। तो वी डी एस जीरो का, उसके बाद आप बाकी इक्वेशन लगाओ तो ये ट्रांसफर क्या होगा, उस केस में आउट ऑफ सैचुरेशन पहुंच जाएगा, हो सकता है ट्रायोड रीजन पे जाए, तो वो सारा करंट वैल्यू चेंज होगा टूवर्ड
आउटपुट कम आएगा। मतलब ये समझो कि इस एलडीओ को ऑन करने के लिए आपको मिनिमम 1.5 वोल्ट चाहिए, ठीक है, वीडीडी। ओके। अगर 1.5 से मिनिमम करोगे तो ये एलडीओ फॉर एग्जांपल ऑफ हो जाएगा, तो क्या होगा कि आउटपुट कुछ भी आएगा। यहाँ तो तो समझ हमें आया। चाहते हैं कि आउटपुट मतलब वीडीडी के क्लोजर आए, लाइक अब आउटपुट अगर मैं मान लो लो 1. ड्रॉप आने के लिए। फॉर एग्जांपल आउटपुट में 1.2 लेता ना, तो इस हम्म। केस में वीडीडी का रेंज अलग होता। इस केस ओके में ओके। क्या है कि इस केस में आपको मिनिमम जो वीडीडी है, ये ग्राफ मैक्सिमम करो, तो ये मैंने डिज़ाइन किया 1.5 ना, तो अगर आप यहाँ पे हम्म। देख सकते हो, तो अगर 1.5 के लिए डिज़ाइन किया तो मिनिमम वीडीडी क्या होगा, क्या है 1.6 है, ठीक है। अब हो सकता है अगर हम्म। 1.2 के लिए डिज़ाइन करो तो ये मिनिमम वीडीडी चेंज होगा, ये हो सकता है कि 1 हो जाए या 1.2 हो जाए। तो अगर आपको ओके। ज़्यादा रेगुलेशन चाहिए तो आप 1.2 के लिए डिज़ाइन करो, तो आपके पास जो वीडीडी का रेंज है चेंज होने का वो ज़्यादा मिलेगा आपको। ये ओके। डिज़ाइन स्पेक्स है, जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो वो आप किस स्पेक्स के लेके, किस पैरामीटर को लेके डिज़ाइन करो। तो वो फिलहाल की ये क्या है कि ये ट्यूटोरियल है, ये जनरल है, सबको समझ में आया है, इसलिए मैंने जनरल कॉमन सर्किट ले लिया। और अगर जैसे मैंने इस पर रिसर्च पेपर लिखा तो वो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा एक्यूरेट है। सिंपल थोड़ा सा एक दो इटरेशन भी करना पड़ता है या सोचना पड़ता है कि ये पैरामीटर को इनपुट करने के लिए थोड़ा क्या करना पड़ेगा। तो दैट द पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। लेकिन क्लास में जनरल के लिए ये सही है कि आपको 1.6 से ज़्यादा वी इन, 1.6 से 1.8 तक आपका वी इन होगा यानी वीडीडी होगा, तब भी आउटपुट क्या कांस्टेंट है उस रेंज में। जनरली आपको जो है एलडीओ का ग्राफ इस तरह से ही आता है कि आप इनपुट को स्वीप करो, लेकिन क्या होगा एक पॉइंट पे एलडीओ ऑन होगा और वहाँ से लेकर मैक्सिमम तक आउटपुट विल बी कांस्टेंट। ओके अब भाई। ठीक, अब हम दूसरा क्या, डीसी लोड रेगुलेशन। लोड का मतलब क्या, कि आउटपुट करंट। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट करंट को स्वीप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, अब क्या करेंगे कि इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा 1.8, आउटपुट लोड ये जो आई लोड है इसको चेंज करेंगे। तो क्या, इसके लिए पहले डॉट डी सी कमांड को हम कमेंट आउट कर देते हैं, और हमें अब ये लोड को चेंज करना पड़ेगा। अब लोड को चेंज आप 0 एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा डॉट डी सी, इसका कमांड भी सेम है, डॉट डी सी। उसके बाद क्या है, ये सोर्स नेम, आपका सोर्स किस टाइम पे वोल्टेज होगा, जो भी हमारे पास वोल्टेज था वीडीडी, तो किसी टाइम पे करंट होगा, तो यहाँ पे करंट क्या, आई लोड, ये सोर्स नेम। उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यूज़, ये स्टार्टिंग वैल्यूज़ है। उसके बाद फाइनल वैल्यूज़ यानी कहाँ तक। तो फॉर एग्जांपल ये 20 मिली है, तो 20 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हो या फिर नेगलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टेप है, इनिशियल फाइनल स्टेप। तो स्टेप में 1 मिली वोल्ट, सॉरी 1 मिली एम्पेयर के स्टेप पे मैं इंक्रीज़ करूँगा। तो अब क्या है कि मैं लोड को वेरी कर रहा हूँ, तो ये डीसी लोड रेगुलेशन कहलाएगा, क्योंकि ये वैल्यू डीसी है फिलहाल ना, क्योंकि ये डीसी वैल्यू है लोड। अब यहाँ पे रन करोगे आप, तो अब ये, अब क्या करोगे आप, वी आउट प्लॉट करोगे। तो देखो वी आउट आपको दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आप जब वैल्यू को ध्यान पे रखोगे तो देखना कि यहाँ पे अब मैक्सिमम मिनिमम पे आओ। तो मैक्स ये ग्राफ का मिनिमम है और यहाँ पे कितना है 1.5006 है, ठीक है। और इस ग्राफ के अब अगर आप इस कॉर्नर पे आओगे, यहाँ पे आओ, तो क्या देखोगे 1.51 यानी 10 मिली वोल्ट का फ़र्क है, ठीक है। 0.01 वोल्ट का फ़र्क है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है ये, क्योंकि बहुत कम चेंज हो रहा है। आप इसको अगर मैं 1.49 को यहाँ पे 1.5 कर दूँ, और 1.5 ना करके 1.51 करूँ अगर, इसको फिलहाल इसको दोबारा रन करते हैं, ये वैल्यूज ये 1.5 ना करके 1.52 कर दो, तो ये देखो कांस्टेंट होगा, ठीक है। स्केलिंग पे डिफर करता है ये। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब एक प्लॉट कर देता हूँ मैं, ये आई लोड प्लॉट करता हूँ,
ठीक है। अब देखो आई लोड क्या है, मैंने 0 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक रन किया, लेकिन वोल्टेज क्या कांस्टेंट है। आप दिखाओ, मैं कि आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल करंट कितना है, 1 पॉइंट एक्स एक्सिस ये है 1.74 मिली एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे ले आओ, दोनों को ओवरलैप कर दो, ये कर्सर 2 है, तो ये वाई एक्सिस कितना है 1.5 है, ठीक है। अगर आप इस करंट को ले अब यहाँ पे ले आओ 15.4 मिली एम्पेयर में, अब यहाँ पे नोट करना वी आउट कितना 1.507 है। अब यहाँ पे ले आओगे आप तो कितना है 501 है, ठीक है। तो जो सर बताए थे कि अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज स्लाइटली डिक्रीज करेगा, वो आप देख सकते हो 507 था 501 है, लेकिन यहाँ देखो डेसिमल के बाद ये इस वैल्यू पे चेंज हो रहा है, यानी 1 मिली वोल्ट का फ़र्क हो रहा है। करंट आपने 15 या मिली चेंज किया एम्पियर, लेकिन आपका जो वोल्टेज है वो सिर्फ 1 मिली वोल्ट चेंज हो रहा है, तो ये गुड स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो था हमने दूसरा प्लॉट लोड रेगुलेशन, ये लोड को चेंज कर रहे हैं 0 से 24, लेकिन आउटपुट जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये आपको ग्राफ ऊपर नीचे इसलिए दिख रहा है क्योंकि यूनिट देख के, अगर आप यूनिट को मैच कर लोगे तो वो सेम ही आएगा, कांस्टेंट आएगा, एग्जैक्ट 1.5 नहीं आएगा, 1-2 मिली वोल्ट का फ़र्क आता है। तो ये दो प्लॉट तो हमारे पास हो चुका है। अब जो तीसरा भी है लाइन, अब यहाँ पे देखो लाइन रेगुलेशन यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे डीसी था यहाँ पे ट्रांजिएंट था। तो ट्रांजिएंट का मतलब मुझे लगता है सब जानते हैं कि ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है। अच्छा कोई बताए ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है। ये जनरल वर्ड है, आप हर जगह यूज़ करते हैं, आप ओपन में मुझे लगता है बहुत बार यूज़ करेंगे ट्रांजिएंट। कोई मतलब कोई भी चीज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाँ टाइम, जनरली हम लोग एल टी स्पाइस के या डिज़ाइन केस में क्या करते हैं कि ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस वुड बी टाइम, यानी आपका जो एक्स, अभी यहाँ पे देखो जब यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्सिस पे करंट है, ठीक है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। तो हमें क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है हमें ये करंट नहीं चाहिए, हमें टाइम चाहिए। तो ऐसा ग्राफ जिसका एक्स एक्सिस पे टाइम हो उसको हम ट्रांजिएंट एनालिसिस बोलते हैं। वाई एक्सिस आपको कुछ भी हो, वोल्टेज हो, करंट हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन एक्स एक्सिस पे टाइम ही होगा, तो उसको हम लोग ट्रांजिएंट बोलते हैं। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो इनपुट वोल्टेज है वीडीडी उसको चेंज करेंगे, यानी एक टाइम इंस्टेंट पे कुछ है, दूसरे टाइम इंस्टेंट पे कुछ है। तो ये मैं पहले क्या किया, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं समझाऊंगा आपको। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें आप ट्रांजिएंट ले सकते हैं, यानी पल्स। नॉर्मली जब शायद आप लोगों ने क्या होगा इन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं और पल्स देते हैं। तो पल्स का ही एक दूसरा फॉर्म है पीडब्ल्यूएल। तो ये पल्स के तरह ही है, मैं इसको रन करके फिर समझाऊंगा आपको। इसको वीडीडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस वीडीडी को यहाँ पे, तो ये क्या है कि अब जो है फिलहाल मैं इसको रन करने के बाद समझा पाऊंगा अभी। तो इसको ट्रांजिएंट लाइन, मैंने कहा था कि आपको कि ये लोड और लाइन में मतलब ये इनपुट सेट करने में थोड़ा सा मतलब मेहनत लगता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ, मैं आपको समझाता हूँ सिर्फ। नॉन वीडीडी, आई थिंक कुछ वीडीडी ज़ीरो, पीडब्ल्यूएल ज़ीरो, अननोन पैरामीटर वीडीडी। अच्छा वीडीडी यहाँ पे क्या है, अच्छा सॉरी, इसको हाँ। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो इनपुट है उसको हम चेंज करें टाइम इंस्टेंट पे।
यानी यहाँ तक क्या था कि हम लोग ये जो है 100 माइक्रो सेकंड तक ये तो फिक्स था 1.8। अब हम क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा टाइम आए कि वो VDD हमारे पास चेंज हो जाए, अभी करें ना डिस्चार्ज हो जाए, तो फिलहाल क्या करते हैं हम कि वो चार्ज हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए, यानी किसी टाइम पे क्या हो कि VDD 2 वोल्ट हो जाए। उस केस में देखेंगे हम लोग आउटपुट क्या आ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा दूसरा ये कि हमारे पास क्या है कि डिस्चार्ज हो जाए बैटरी, यानी 1.6 आ जाए किसी टाइम पे। टाइम इंस्टेंट पे होता है ना, मान लो आपने यहाँ पे 0 टाइम पे अपने बैटरी चार्ज किया और आपका जो है 212 माइक्रो सेकेंड पे बैटरी डिस्चार्ज होकर 1.6 आ गया, तो उस केस में वी आउट क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एड प्लान कर लेंगे, इसको ऊपर ले आओ और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वी आउट प्लॉट करेंगे। तो ये वी आउट है। अब देख सकते हो आप कि जब वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन देखना कि हम लोग यहाँ पे इंक्रीज़ कितना हुआ। अगर इस ग्राफ को करोगे तो 1.8 है 2 है, यानी आप 0.2 इंक्रीज़ हुआ है ना। अब देखोगे इसको जूम कर लो यहाँ पे कि जब 1.2 इंक्रीज़ हुआ तब वी आउट कितना चेंज हुआ। तो आप देख सकते हो कि दूसरा ग्राफ ले लो, एक एक और परसेंट सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे दो ग्राफ देखो, यहाँ पे ये 1.8, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे चेंज देखोगे आप कि इनपुट पे हमारे पास 0.2 यानी 200 मिली वोल्ट का चेंज हुआ, लेकिन जो आउटपुट है वो सिर्फ 318 माइक्रो वोल्ट चेंज हुआ, बहुत कम। कहाँ 200 मिली वोल्ट और कहाँ 300 माइक्रो वोल्ट, यानी अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो ये चेंज नहीं, जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है 318 माइक्रो वोल्ट चेंज हो रहा है। अब आप में से कोई यही सेम सर्किट डिज़ाइन करो सेम स्पेक्स लेके, और उसका जो ये 300 माइक्रो के जगह आप 200 माइक्रो वोल्ट आए, तो वो सर्किट वो डिज़ाइन ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि उसमें चेंज कम हो रहा है। उसी तरह से क्या होगा आपको, अब यहाँ पे देखो जूम करो नीचे। अब यहाँ पे क्या है कि बैटरी डिस्चार्ज हुआ हमारे पास, पहले बैटरी था 1.8 अब 1.6 आया, यानी 200 मिली वोल्ट का डिस्चार्ज आया। तो देखेंगे हम लोग आउटपुट कितना चेंज हुआ। तो आप यहाँ पे एक कर्सर यहाँ पे रखो, दूसरा कर्सर नीचे रखो, तो देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो है 200 मिली वोल्ट का चेंज आया, लेकिन जो आउटपुट है उसमें 6 मिली वोल्ट का चेंज आया। तो ये भी बहुत कम है, यानी इनपुट पे 200 मिली वोल्ट का चेंज हो रहा और आउटपुट पे सिर्फ 6 मिली वोल्ट का। तो ये भी बहुत कम, मतलब अच्छा है, और जितना चेंज हो कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये है डीसी ट्रांजिएंट लाइन रेगुलेशन, यानी जो VDD था उसको डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे उसको चेंज करके देखें और आउटपुट पे का बिहेवियर एनालाइज किए। अब तो तीसरा, अच्छा हाँ, अब ये जो PWL कोऑर्डिनेट्स है ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। ये पल्स की तरह है। पल्स की तरह क्या है कि पल्स आप क्या देते हैं कि वो पीरियडिक होता है। आप पल्स को पल्स किस अगर पल्स देखोगे आप, पल्स सोर्स ये है कि ये मतलब पीरियोडिक सिग्नल है, तो हम लोग इस तरह से भी दे सकते थे। ये सिग्नल भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो यही था, कांस्टेंट 1.8 है और फॉर एग्जांपल आप एक बार 200 मिली वोल्ट चेंज कर दो, तो ये सिर्फ इंक्रीज या इंक्रीज ही हो सकता है। या 1.8 यहाँ पे है, आप 1.6 करें तो एक ही मतलब मोनोटोकल, मतलब चाहे तो इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा। तो दूसरा क्या है, दूसरा सोर्स होता है LT स्पाइस में PWL, यानी पल्स विथ एग्जैक्ट, मैं PWL का वो मतलब फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, लेकिन ये पल्स कोऑर्डिनेट होता है कि अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे क्या वैल्यूज़ होगा। तो ये क्या होगा, आप एडवांस टॉपिक पे जाके यहाँ देखो PWL कोऑर्डिनेट है, तो इसका क्या है कि टाइम है वैल्यूज़ है, यानी 0 पे वैल्यू कितना है 1.8, यानी 0 सेकेंड पे 100 माइक्रो सेकेंड पे भी 1.8 रख रहा हूँ तो वो कांस्टेंट था,
उसके बाद क्या कर रहा हूँ कि 101 पे मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने एडिशनल बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए उसमें, तो इस तरह से कर सकते हो आप। फिलहाल आप क्या करो, पहले ये जो 4 वैल्यूज़ है उसको ऐड करो, उसके बाद एडिशनल करते करते सिंपल है कि आप यानी किस टाइम पे क्या वैल्यू चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड है, अब फॉर एग्जांपल ये 2 सेकंड है, अब मुझे 2 सेकंड पे वी आउट का वैल्यू चाहिए 2, और 2.1 सेकंड पे भी वैल्यू चाहिए 2, 2.2 पे वैल्यू चाहिए 5, 2.5 पे वैल्यू चाहिए 6। इस तरह से आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, यानी किस टाइम पे आपको क्या वैल्यू चाहिए। तो ये जो ग्राफ है ये वही दिखा रहा है कि हमें यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट चाहिए, फिर मैंने यहाँ पे चेंज किया, फिर यहाँ पे चेंज किया, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप मैप करोगे तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप इस ग्राफ में देखो कि ये चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर, अगर स्केलिंग फैक्टर को अलग कर दोगे तो ये थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा दिखेगा। तो इट्स ऑल अबाउट स्केलिंग फैक्टर। ऑफ कोर्स द वैल्यू देखो यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपको, तो ये बहुत कम चेंज है, मिली माइक्रो में है ना, इसीलिए जब आप इसको सेम वैल्यूज सेम ग्राफ पे ले आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, वो चेंज हो रहा थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि इस स्केल फैक्टर ज़्यादा है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है वो चेंज है। अब जो चौथा और लास्ट एनालिसिस है वो है ट्रांजिएंट लोड। अब ट्रांजिएंट तो समझ चुके हैं, और लोड जो हम लोग ये लोड था यानी लोड चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम डीसी चेंज यानी 0 से 24 नहीं करेंगे, हम टाइम के इंस्टेंट पे चेंज करेंगे, यानी 0 सेकेंड पे हमें 15 मिली एम्पेयर चाहिए, 10 सेकेंड में हमें 16 मिली चाहिए, 20 सेकेंड में हमें इतना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको फिर से 1.8 कर दो, इसको डीसी नन करके 1.8, ये 1.8, यानी आप जब ये देखना कि आप जब लोड रेगुलेशन करो तो इन VDD 1.8 होना चाहिए, यानी आप आउटपुट चेंज करो तो इनपुट जो डिज़ाइन पैरामीटर था वही था। आप ऐसा नहीं कि आप इसको भी चेंज करो इसको भी चेंज करो, नहीं, आप एक ही को चेंज कर सकते हो, आइदर यू कैन चेंज लोड और यू कैन चेंज लाइन। तो हमने जब लाइन चेंज किया था VDD तो आउटपुट कांस्टेंट था 20 मिली। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो हमें ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो अब ये 20 मिली की जगह हम ये वैल्यू देना पड़ेगा हमें, ये यहाँ से PW सेम, इसका भी सिंटेक्स सेम है, मैं इसको रन करके तब समझाऊंगा फिर दोबारा। अब इसके लिए क्या ये वाला लोड के लिए मैं अलग किया हूँ। अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर फ़र्क देखोगे ना तो सिर्फ ये स्टॉप टाइम का फ़र्क है, ये क्योंकि ये 20 मतलब ये टाइम 20 सेकेंड तक ज़्यादा शायद है ना, तो 20 सेकेंड नहीं, आई थिंक ये 10 टाइम, इसको यहाँ से देख सकते हो आप कि ये टाइम कितना है, यहाँ 20 मिली सेकेंड तक जा रहा है, ठीक है। या आप इसको छोड़ दो आप, तो ये 20 मिली सेकेंड है, तो हमें क्या करना है 20 मिली सेकेंड तक रन करना है। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे लोड की जगह तो यहाँ पे 25 तक स्टॉप टाइम दिया हूँ, 20 दे सकते हो आप लेकिन ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपको क्या है, ये जो टाइम सेलेक्ट करना है ये देखना कि ये इसका लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका लास्ट तो नहीं, सेकेंड लास्ट कोऑर्डिनेट, आप इसको मैंने इसलिए किया कि ये कांस्टेंट है बहुत दूर तक, तो सेकेंड लास्ट कोऑर्डिनेट क्या ये है, तो यहाँ तक आपको रन करना पड़ेगा। तो जब मैं इनिशियल फेज़ में था, मैं जब LDO डिज़ाइन कर रहा था तो ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था कि कहाँ तक रन करे ये, क्योंकि आप अगर आप 10 माइक्रो तक मिली तक रन करोगे तो कांस्टेंट दिखेगा आपको। तो ये जो PWL है कौन सा 20 वाला ना, हाँ 25 वाला, तो आप इसको देख सकते हो कि ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर आप मान लो स्टॉप टाइम यहीं तक कर दो तो आपको ये कांस्टेंट दिखेगा, ये बाकी चीज़ें दिखेगा नहीं। तो स्टॉप टाइम कहाँ तक दोगे आप, इसका जो स्टॉप टाइम है यानी कहाँ तक है ये डिसाइड करोगे आप PWL का लास्ट या सेकेंड लास्ट। 25 भी दे सकते हो आप, लेकिन 25 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25 सेकेंड है ये, तो सेकेंड लास्ट दो। और इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते थे, थोड़ा सा रुक जाए,
तो ये देखो कि इस पे ये टाइम था, मैं इनिशियल समझा देता हूँ आपको एक बार कि 0 सेकेंड पे क्या वैल्यू था, x0 y0। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये 0 का मतलब 10 माइक्रो बहुत कम है, ठीक है, तो 10 माइक्रो ही है ये। अगर देखो, सॉरी, यहाँ देखो आप कि यहाँ पे वैल्यू क्या था 0 पे 9.9 माइक्रो, यानी टाइम 0 वैल्यू 9.9, तो ये 9.9 माइक्रो मतलब 10 माइक्रो यहाँ पे एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम 0 और वैल्यू क्या है 10 माइक्रो। फिर अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तो कांस्टेंट चाहिए, यानी अब मैं जो है इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, कहाँ पे, ये अराउंड 5 मिली सेकेंड पे। तो 5 मिली सेकेंड पे तक जो है ये 10 माइक्रो कांस्टेंट है। तो दूसरा वैल्यू क्या होगा कि ये 5 तक, ये टाइम दूसरा 5 और वैल्यू क्या 10 है। तो यहाँ से यहाँ भी 0 10 और यहाँ भी 5 10, तो यानी y एक्सिस कांस्टेंट है, यानी आपको कांस्टेंट करंट दिख रहा है। उसके बाद क्या करोगे आप कि यहाँ पे अब आपको जो है यहाँ पे y एक्सिस, सॉरी, इस टाइम पे आपको वैल्यू चाहिए 20 मिली, यानी 5.1 मिली सेकेंड पे। तो यहाँ पे वही किया हूँ मैं कि 5.1 पे 5.1 मिली सेकेंड पे हमें वैल्यू चाहिए 20, और ये कांस्टेंट रहेगा। ये कहाँ तक रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक। तो दूसरा क्या टाइम देंगे हम, टाइम देंगे ये 10 मिली सेकेंड और वैल्यू 20 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आप इस चार्ट को प्लॉट कर सकते हो। सिंपल जस्ट एक्स और वाई को मैप करना है, यानी इस कोऑर्डिनेट पे एक्स वाई वैल्यू क्या है, इस पे क्या है, इस पे क्या है, इस कोऑर्डिनेट पे क्या है, इस कोऑर्डिनेट पे क्या है। तो इस जस्ट कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई आप प्लॉट करोगे तो ये PWL कर्व आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोड को हम चेंज कर रहे हैं टाइम पे, तो हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे कि कांस्टेंट है कि नहीं है। तो आप इसको सेम विंडो में प्लॉट कर सकते हो। और ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं अलग कर लेता हूँ। अब देखो कि जब आपका कांस्टेंट था 10 माइक्रो, तो ये वोल्टेज था, तो आप ये पता है आई लोड। तो आप देख सकते हो जब कांस्टेंट 10 माइक्रो था आई लोड, तो हमारे पास वी आउट कितना था 1.51 था, क्योंकि करंट बहुत कम है तो थोड़ा क्या हुआ कि वी आउट ज़्यादा हुआ। अगर आप फिर एक बार फिर 20 यानी 10 माइक्रो से 20 मिली एम्पियर, बहुत बिग डिफरेंस है। उस केस में क्या क्या देखोगे आप कि 20 मिली एम्पियर का डिफरेंस है करंट पे, लेकिन आउटपुट पे जो है वो इतना है, यानी 1.51 से 1.49 आया। तो इसको कोई बता सकता है कि 1.51 माइनस 1.49 कितना होगा, ऐसा कैलकुलेट करो इसे, डिफरेंस कितना आया। 0.02। हाँ, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको 2 कर्सर ले लो, ये होगा, ये 1.41 था और ये दूसरा वैल्यू था, ये 14 मिली वोल्ट था। तो जिसने बताया वैल्यू शायद वो गलत था। अच्छा, सही हो सकता है क्योंकि आपने उसको ट्रंकेशन के बाद माइनस किया, यानी करंट हम लोग 24 मिली एम्पेयर चेंज 20 मिली एम्पेयर चेंज कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट पे सिर्फ 14 मिली वोल्ट चेंज हो रहा है, तो ये कम चेंज हो रहा है। दूसरा आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आप स्टेप पे चेंज किया हो। देखो यहाँ 24 स्टेप है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10, यानी 20 था 10, यानी 10 मिली वोल्ट का चेंज है। उस केस में वी आउट कितना है आप देख सकते हो कि जब वी इन हमारे मतलब लोड जब 10 मिली एम्पेयर चेंज कर रहे हैं, तो आउटपुट पे जो लोड है वो 3.2 मिली वोल्ट चेंज हो रहा है, बहुत कम है। उसके बाद यहाँ पे 10 था, उसके बाद ये 4 है, यानी 6 मिली एम्पेयर का चेंज किए। तो आप ये भी देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे 6 मिली एम्पेयर चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट पे वैल्यू कितना चेंज हो रहा है। 2 कर्सर ले आके, एक कर्सर यहाँ पे रखो, यहाँ पे तो वो चेंज दिखाएगा, यानी आप 6, ये 2.8 मिली वोल्ट था, ठीक है, ये चेंज हो रहा। अब क्योंकि आप 1.5 वोल्ट ले रहे हो ना, तो वहाँ पे 2 मिली वोल्ट आपको इतना सिग्निफिकेंस होगा नहीं उसका, ठीक है। अगर मान लो 1.5 पे आप 2 मिली वोल्ट ऐड करोगे तो कितना होगा बताओ कोई, 1.5 प्लस 2 मिली वोल्ट, कैलकुलेटर यूज़ करो, 1.5002 इस तरह से होगा, है ना। तो 1.5 1.5002 ये क्लोज वैल्यूज है।
तो इसलिए 1.28 मिली वोल्ट का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कहाँ पे आप 1.5 वोल्ट ले रहे हो यानी वोल्ट में ले रहे हो, और कहाँ पे आपका मिली वोल्ट में चेंज हो रहा। उस तरह से आपका यहाँ पे भी था, ये 4 से 10 माइक्रो तो बहुत कम था, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना चेंज हुआ। तो ये जो ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा डिफर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे यूनिट देखो तो बहुत बहुत कम है, यानी 4.99 है। इसको अगर आप 1.2 कर दो ना, तो देखो ये कम हो जाएगा, मतलब वैल्यूज़ में बहुत कम है। फिजिकली आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर से सीधे नीचे आ रहा है, लेकिन वैल्यूज़ बहुत कम है, वो मिली वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये चार और एक ओपी 5 एनालिसिस था डॉट ओपी, जिससे हम लोग वी आउट ये आप कर्व जनरेट करना है। ठीक है, तो ये स्लाइड में भेज दूंगा आपको, और इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ये। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग तो आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो बाद में मैं प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे जो था हम लोग का LDO सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जो हम लोग एनालॉग समर ट्रेनिंग स्टार्ट करे थे सेकेंड ईयर वालों के लिए, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या एक मतलब हम लोग चाह रहे थे कि एक कंपटीशन हो। कंपटीशन का मतलब क्या है कि एक स्पेक्स और डिज़ाइन चैलेंज कह लीजिए जैसे, कि सब जितने लोग ने डिज़ाइन किया वो किसी भी स्पेक्स के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम लोग मेरिट सर्टिफिकेट देने वाले थे। तो ये अतीकुर रहमान सर से मेरा डिसाइड हुआ था, तो वो बाकी है। बाकी डिज़ाइन पार्ट OPAM डिज़ाइन कर चुके हैं आप लोग सिंगल स्टेज, और 2 स्टेज जो है वो थर्ड ईयर में डिज़ाइन करेंगे। एक लैब आया पी स्पाइस लैब, यानी लैब 3 इस तरह से आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब 3 या इस तरह से कुछ। तो उसमें जो है वो डिज़ाइन करोगे आप सेकेंड स्टेज। तो उसको हम लोग सेकेंड स्टेज इसलिए भी नहीं करवाएं कि उसके हिसाब से कि बाद के बच्चे ये ना कहे कि हमें तो सब आता है। तो आपको लैब को भी सीरियसली लेना है। और आप OPAM अगर आप डिज़ाइन कर लोगे तो 2 स्टेज OPAM डिज़ाइन करना बहुत आसान है। जस्ट एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डिज़ाइन करना, यानी जो स्टार्टिंग में आप कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डिज़ाइन किए थे उससे OPAM डिज़ाइन किए थे, तो फिर उसी कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को आप OPAM के आउटपुट स्टेज पे लगा दो, वो 2 स्टेज एम्पलीफायर हो जाएगा। उसका फ़र्क क्या होगा, गेन इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी ये जो सर्किट था इसका गेन था 45, तो इसका 2 स्टेज बनाओगे तो मे बी आप 1000 से लेकर 8000 तक गेन ले आ सकते हो। और OPAM का इस हाई गेन हमें डिज़ायर्ड होता है। और LDO के पर्सपेक्टिव से भी हमें क्या होता है कि अगर आपका एरर एम्पलीफायर हाई गेन का होगा, तो वो जो चेंज, ये जो आप देख रहे थे ना कि वो 5 मिली वोल्ट चेंज हो रहा, तो वो चेंज आपको जल्दी हो जाएगा, यानी कम टाइम पे आपका वो सर्किट रीगेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 1.5 था, चेंज किया आप 1 पॉइंट कुछ हो के फिर दोबारा 1.5। अगर आप फॉर एग्जांपल इस सर्किट में 5 सेकंड टाइम लेता है दोबारा उस 1.5 स्टेबल पे आने में, अगर आपका ये एम्पलीफायर का हो सकता है ज़्यादा हो, तो 5 मिली सेकेंड ना लेके वो 2 मिली सेकेंड पर दोबारा 1.5 आ जाए। तो स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से हमें हाई गेन चाहिए, हाई बैंडविड्थ चाहिए। तो आपका जितना अच्छा ये OPAM, मतलब जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने का मतलब है कि हाई गेन, हाई बैंडविड्थ, स्लू रेट, CMRR हाई होगा। तो अगर वो आइडियल OPAM के क्लोज होगा तो आपका जो है LDO सर्किट भी का जो पैरामीटर है वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ OPAM था। तो OPAM का एप्लीकेशन बहुत सारा होता है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। तो हालांकि लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर आसान है, लेकिन LDO अगर आप डिज़ाइन कर लिए तो आप रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप मेजर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, MTech का डिजर्टेशन तक कर सकते हैं। हाँ, ये कि सेम सर्किट नहीं, आपको उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्पेक्स बहुत क्लोजली लाना पड़ेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये आप LDO सर्किट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है और MTech लेवल का है। तो अगर आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में जान रहे हो, अगर इस पर आप काम करोगे तो आप हो सकता है कि आपका अच्छा हो। और दूसरा मैं आपको एज एन पर्सनली कहना चाह रहा था कि ये जो सर्किट हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ये इसको स्कीमेटिक बेस्ड बोलते हैं ना, LD स्पाइस शेयरिंग। ये क्या है, स्कीमेटिक का है, यानी आप क्या कर रहे हो कि लाइब्रेरी से कंपोनेंट ले रहे हो, ठीक है, जैसे NMOS है, ये लगा रहे हो, इसका कनेक्शन कर रहे हो, ठीक है।
तो एक दूसरा इस सर्किट को, यानी इस सेम सर्किट को, इस सर्किट को यानी या एलडीओ सर्किट जो हम लोग देख सकते थे, ये भी मैं निकाल लेता हूँ। इस सर्किट को आप इस तरह से ना लिखे, इसका नेटलिस्ट होता है। नेटलिस्ट क्या होता है कि आप यहाँ पे व्यू पे जाओ, नेटलिस्ट जाओ, तो ये एक मेथड ये है कि आप इसको पिकअप प्लेस ना करके इसका सिंटेक्स कोड लिखो। कोड का मतलब इस तरह से इसका कोड होता है। कोड क्या है देखो आप यहाँ पे, ये M1 है। M1 क्या है, ये MOSFET 1 था जो V इनपुट पे था। देखो इसका नोड नेम है, ये ड्रेन, गेट, ये सोर्स, ये बॉडी, बॉडी VSS है, पहचान लोगे। ये क्या है, मोस NMOS था, तो ये NMOS टाइप था। कहीं PMOS होगा तो PMOS लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये लेंथ है, इसके बाद ये विथ है। तो ये उसके बाद इसका मॉडल लिखते हैं। उसके बाद जो हमने ये लिखा, ये जो लिख रहे थे ना, ये जो डॉट DC है, ये नेटलिस्ट का ही सिंटेक्स है। आप देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि ये डॉट DC आएगा कहीं पे, डॉट DC यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको लिखोगे कहाँ पे, तो इसको लिखोगे आप सिंपल नोट पैड पे। मैं ये शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सिंपल एक नोट पैड ओपन करो आप। ये TXT मतलब नोट पैड का मतलब TXT फॉर्म में। ये नोटपैड है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे R1 था तो R1, ये 1 फिलहाल देख लेना क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 2 इस तरह से 1 के इस तरह वैल्यू दे सकते हो। तो इस तरह से क्या है कि सेम सर्किट को आप कोडिंग के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं नेटलिस्ट। तो सब देख लेना एक बार नेटलिस्ट क्या होता है, और नेटलिस्ट प्रैक्टिस कर लेना। और मैं चाहता हूँ सर हैं सर, सर लीव कर गया क्या? आई थिंक नौसाद सर लीव कर चुके हैं। तो आप जो है दोनों तरह से सीखना, थ्रो